Okay, Mangesh. Yeah, good morning to all. It's with great honor that I welcome you all, visitors and members to 10, the Entrepreneurs Network. I trust you all are comfortable and ready to begin today's meeting. I'm Rahul Amrute, Chairman, shouldering the responsibility of the current tenure. In my task, I'm ably supported by Manoj Tehliani, the Secretary, Mangesh Patole, the Relationship Manager, Jagdish Punjabi, who heads a dual role of organizing events and treasurer, and social media managed by Ram Kumar. 10, the Entrepreneurs Network, is a not-for-profit organization. Single-minded focus of 10 is to help entrepreneurs from different business fields to come together and succeed. To know more about 10, I would kindly request Mangesh Patole to play the AV. It's a small AV. Please go through it. Thank you. Thane, Maharashtra's major industrial town, fastest growing and slated to be the most happening commercial hub. Over the last decade, Thane has grown from a small suburban town to a large, self-sustaining metropolis. Proximity to the financial capital of the country has extended ample opportunities to Thane for becoming the richest district in Maharashtra, with potent factors like well-planned infrastructure and low cost of operation. With growing opportunities and upcoming business ventures comes the growing need for business networking to learn, to explore, to connect, and to share avenues for mutual growth. Welcome to the Entrepreneurs Network, popularly known as 10. Established in 2010 with the intent of providing a platform for entrepreneurs to share their experience, to learn, and to educate fellow entrepreneurs, along with generating business opportunities for mutual growth. Our motto: connect, breakthrough, and prosper. In 2009, basically I was totally confined to the four walls of my own retail outlet. Probably that time I was feeling the need to get out of that those binded four walls. So there was a business networking group. I joined that, and after 1.5 years, basically there was some disconnect with that particular group. So we wanted to start something which was more Indianized. We wanted to do something to build a community of entrepreneurs. And in 2010, we started this 10 Entrepreneurs Network. 10 is a close-knit community of different business verticals across industries. 10 ने मुझे अभी जो फ़ायदा मिला है, काफ़ी फ़ायदा मिला है. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे काफ़ी मिली है 2009 से. ग्रोथ काफ़ी हुआ है. I love 10 as a network because it is very different from the other business networks what you see. And it has helped me a lot in my overall development for my business, for my relations. And what I found, people around us are all wanted to grow in their business and help the society around. And I'm so happy to join the 10. After coming here, I found a different friendship, a different support system. 10 members contribute connections, ideas, and time to help 10 grow. Members are rewarded with training workshops, insights, network, and camaraderie offered by other like-minded entrepreneurs. They meet alternate Wednesdays from 7:15 a.m. to 9:45 a.m. What I liked about 10 is more of a kind of a learning platform. So I learned a lot from 10, through different sessions, different workshops. What I like about 10 is core functionality, which is continuous learning for entrepreneurs. That is, we can say it is a core function of 10 on which it operates. 10 has been extremely beneficial to me in enhancing my personality and making me equipped to face the challenges as an entrepreneur. Connecting, breakthrough, and prosper, which is the mantra of 10, is something which I was seeking for in my business career. 10 conducts activities such as 10 Connect session, open minds, outdoor meetings, and annual conclave. 10 Connect session provides a robust platform to its members for learning and sharing experiences, one-on-one interaction, apart from addresses by internal and esteemed guest speakers. 10 Engagement
also extends to events such as Open Minds, where established entrepreneurs and business owners are invited to share their life lessons and growth stories while interacting with live audience. It's an event that Thaneites eagerly wait for. Outdoor meetings are fun coupled with learning. It aims at increasing member bonding and interactions beyond regular meetings. It includes site visits, visiting fellow members' workplace, and short outings which are extremely high on fun quotient. Vasudhaiva Kutumbakam, they are exactly following that. That really brings me to here. Since inception, 10 members have transacted more than 275 crores of business with its members and connects beyond 10. As we move ahead in this path of connecting for mutual growth, we look forward to more heads, more hands, and more hearts to come together. We welcome you to attend the 10 Connect session, to experience entrepreneurial energy, creativity, and motivation. Let's give our classic 10 clap to 10, which goes 1, 2, 1, 2, 3 twice. 10. The Entrepreneurs Network. Connect, breakthrough, prosper. Yeah, thank you, Mangesh. I would kindly request our Secretary Manoj Teliani to begin the next agenda by introducing our esteemed speakers for the day, Mr. Paras and Tushar. Over to you. Thank you, Rahul. Thank you, Rahul. Good morning, everyone. Welcome to our today's 10 web session. Friends, topic for today's webinar is Investors Awareness Program on Asset Allocation. History shows you don't know what the future brings. The most important key to successful investing can be summed up in just 2 words: asset allocation. To know more on this topic, we have a team of 2 speakers today. Mr. Tushar Nanda, who is a channel head for National Distributors SBI Mutual Fund, and our tenor, Mr. Paras Shah, who is a financial planner and consultant. Friends, let's welcome our speakers for today's session. Thanks. Over to you, Mr. Tushar and Paras. Thank you. Hello. Yeah. Tushar, your video is off. Yeah, I'm just switching it on. I think that there's some network connectivity, so I'm just trying to probably open it at the right time. Yeah. So can you all hear me? Is it fine? Yeah, very much, Tushar. Yeah. So thank you, 10 Network, for associating with us today, and as probably enlightened by the video also. Like, you guys have been doing a wonderful job in terms of associating with the businesses and trying and growing and prosper them. So what I understand from this video and this network is that obviously, you guys are associating with a lot of business people and having the same minds all together, so that everybody should have the same ray of hope and probably prosper in their own lines of business. So they keep on having different topics in terms of learnings and in terms of orientation. So today, I'm being called probably to discuss on asset allocation. Before that, I probably believe that you all are keeping well and safe in this problematic times of pandemic, and you have taken the opportunity and your precious time to join this at the peak of Saturday, which is probably may not be the right day to do it. But then since we all get the benefit of being on holiday, and then we can probably have our thoughts put together. So we will discuss about it. I am from SBI Mutual Fund, myself Tushar Narula, and I've been taking care of national distributors per se. There are bigger kind of teams which are doing mutual funds. So this is what I do, and since last 12-15 years I've been into finance much. So just to touch base on the today's topic, which is like asset allocation. बहुत simple सी चीज है. I'll try and probably mix both the languages so that it becomes feasible and understandable, and we'll touch upon the basics of it.
आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे. Obviously, I think that because since we are in these times of the way the things are happening, people have understood that what is the basic importance of investments and why we should do it. So starting kahan se hota hai? Starting, it happens from it happens from your goals only, and then you get into the asset allocation and other things which we will speak about. So I have a small presentation. I'll just take few minutes of yours. We will have this question answer session at the end of the tenure, and after the session ends. So you can keep all your questions ready. Either you can put it in the chat box, or you can probably ask it after once we complete the presentation. So if we want to just start with, then how, because asset allocation hota kya hai? How do we do it? No, asset allocation, let me just brief you. हम लोग ये अपने beginning से कर रहे हैं. It is not a very new thing to us. This is what we have been doing since I think old ages. Just to give you an example, for example, you have your sons and daughters who are your assets. हम लोग बोलते हैं ना कि अभी when we have a son born, तो then initially हम लोग पहले क्या बोलते थे कि बेटा ये इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या फिर he will go into medical and he will go into different field. क्या करते थे? We try and give हमारा child जो है ये 100% he should become a doctor. 80% चलो डॉक्टर नहीं बन पाए तो then he can probably become an engineer, or probably he can become lawyer, or he can become maybe he get into some administration or become a government servant or whatever. अब वो क्या हो गया है ना, वो shift हो गया है. Now this shift has come towards the children. Now children have a different activities to do. Somebody wants to be a YouTuber. Somebody wants to be, they want to pursue their career in sports. Somebody wants to pursue their career in entertainment. So now the fields have changed. So example आप लीजिए कि आप सपोज करिए एक स्ट्रीट वेंडर है. नो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल. एक स्ट्रीट वेंडर है जो कभी ही इज सेलिंग हेलमेट्स आल्सो, ही इज सेलिंग रेनकोट्स आल्सो, ही इज सेलिंग probably sunglasses also, he is selling seat covers also. So what this street vendor is doing, what the street vendor is doing, what he's trying to do is that he is trying to keep all the assets classes with himself. कि कल को सपोज करो मैं बाहर गया और मैंने देखा कि नहीं मेरे को अभी, because at the time of summers वो sun glasses बेचेगा, at the time of rainy season he can sell the umbrellas, at the time of winters he can sell the jackets. So what this street vendor is doing, just to give you a perspective that what we are talking about and what we are going to talk on in the further slides also. So what he is doing, that he is diversifying himself into the different product classes. Why he is doing that? Because he don't want to depend on one source of income. अब आपने गर्मियों में तो सन ग्लासेस बेच दिया, बट अगर मेरे को बाइक में जा रहा हूँ और मेरे को देखा नहीं मेरे को तो हेलमेट भी चाहिए, तो वो ऑप्शन भी है. या मेरे को अगर इफ यू वांट अ सीट कवर, वो ऑप्शन भी है. If I want, why he is doing that? He is not depending on one source of income. He can get into other products also. So this is what. So these are the assets. Like वो street vendor क्या कर रहा है? उसके पास assets ही है ना. वो एक time पे he is keeping all the assets with himself so that he can portray it. और जिसके requirement होगा वो, so he can you can buy it from him. Similarly, it happens in our in our journey also. When we are trying to build up our goals, when we are trying to build up our assets, when we are trying to do the things. Parasji, can you start the presentation if you are screen sharing, if it is there with you? Parasji? Hello. Yeah, Paras. Yeah. You are a co-host. You can share the screen now. हाँ एक सेकंड ना, वो नेटवर्क में इश्यू है, एक सेकंड.
or shall I do it if you are? सर यहाँ से ना नेटवर्क में प्रॉब्लम है. ठीक है, let me do it. I'll do it. Just a moment. Is it all visible to you? If it is fine. Yes, sir. Yeah. You all let me just open it up so that. Is it fine now? Can we all see it? Yeah. Yes. It's a full screen now. Yeah. Yeah. So तो क्या होता है ना, हमारा कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है कि when we are earning the money, we are too sure that no, we have to spend it, and we have to spend it in such a manner that we don't know that where we are spending it is discretionary spending, non-discretionary spending, what is happening. मतलब अब आप थोड़ा सा अपना एक लाइफस्टाइल ले लो, या you take your own self. Up till 30-35 years, all the unmarried couples have only one agenda in life, that how to spend the money well. They think about allocating the money towards their retirement or towards their savings or towards their goals, which I said that it has to be the first primary thing to do once they get married and once they get the sense of responsibilities. तो एसेट एलोकेशन जो होता है ना, वो आपका इट कम्स आफ्टर. सबसे पहला क्या होता है कि आपको आपके लाइफ में गोल्स क्या है. दिस प्रॉब्ली मे बी यूजफुल टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज आप कोई भी बिजनेस में रहें, आप कोई भी काम करें, आप जब पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसे को अगर आप ग्रो करेंगे तो दैट पैसा इज गोइंग टू वर्क फॉर यू आफ्टर योर रिटायरमेंट और वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव दैट मनी. सो वॉट पीपल डू इज people don't have a clear idea. अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे 20 लोग हैं, 20 में से अगर 20 लोगों को पूछा जाए कि आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो किसी का आंसर आएगा 60, किसी का आंसर आएगा, किसी को कोई बोलेगा मेरे को अगर इतना पैसे दो तो कल रिटायर हो जाऊं, कोई बोलेगा नहीं 40, कोई बोलेगा 50. So there are different answers. We don't know. It's a time horizon blindness. We don't know what is happening. उसके बाद हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसमें टैक्सेशन क्या होगा, उसमें एक्सपेंसेस क्या होगा, वी डोंट नो. सो हमको क्या लगता है कि दूसरा क्या होता है कि मोर इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन विच इज पॉसिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर नेबर्स. कि मेरे वो मामा जी ने एक पॉलिसी ली थी, वो अच्छी पॉलिसी थी, या उन्होंने ये फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, उनका रिटर्न अगर 5 गुना हो गया तो मैं आज डाल देता हूँ क्योंकि उनका रिटर्न हो गया है. सो दिस इज व्हाट हाउ वी फील. मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ हेडेक, सो यू डोंट गो एंड गो टू द प्रोफेशनल फॉर a professional doctor or probably somebody who can guide you and tell you that this headache is not because of your normal day-to-day activities, it can be something else. बट हम लोग पहले क्या करते हैं, हमको हेडेक होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जाके एक सेरिडोन ले लेते हैं और खा के बैठ जाते हैं कि सेरिडोन से हेडेक ठीक हो जाएगा. वी डोंट नो whether the underlying disease is something else or not, but we take it. So that is how we treat our investments also, that we don't know what is happening. हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, but we will do it. So दूसरा क्या होता है कि हमें कोई बता देता है कि आप ये ना एक नया फंड आया है या ये नया स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आया है तो यहाँ पैसा डाल दो. अब हमको पता नहीं है कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है. मोस्ट ऑफ अस हम लोगों को नहीं पता रहता है कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, बिकॉज हमको प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता होगा तो रिस्क टॉलरेंस मालूम रहेगा कि मेरे को इतना रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. देन फेलियर टू कंसिडर टोटल रिटर्न्स. व्हाट डज इट मीन कि आप जो रिटर्न्स देख रहे हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं अभी आपके आगे डिस्कस करूंगा. देन आई सेड इग्नोरिंग एक्सपेंसेस, फेलियर टू सी दैट एवरी इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रेड ऑफ, एंड देन डाइवर्सिफाई. क्या होता है, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ. सो मेनी इन्वेस्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू ओवर देयर इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट. They think that their precision is right, their probability is right, and then probably the future outcomes will be right, but it doesn't happen that way. So this is what happens. अब हमने क्या किया है ना, ये थोड़ा सा एक चार्ट लिया है खाली आपको बताने के लिए, just for your understanding, that 2010 to 2019 what are the asset classes. अभी हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बेसिक बात करते हैं. हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, या तो हम जाएंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो हम जाएंगे एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो हम जाएंगे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, विच वी थिंक एलआईसी इज इन्वेस्टमेंट, विच इज नॉट.
बट देन हम लोग को लगता है कि हमारे को जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ जो हमको बोल रहा है कि आपको 15 साल बाद पैसा मिल जाएगा, वापस इतना रिटर्न मिल जाएगा, हमको लगता है ये दिस इज द इन्वेस्टमेंट. So we are not touching this topic today. We are touching only the asset allocation. कि अगर मेरे को गोल्ड में, मेरे को लगता है गोल्ड इज द बेस्ट एसेट क्लास, या रियल एस्टेट. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट से अच्छा तो कोई बॉम्बे के अंदर चीज ही नहीं है, बिकॉज बॉम्बे में रियल एस्टेट प्राइसेस नेवर करेक्ट. अगर मैंने 10 साल पहले घर लिया है तो 10 साल बाद मेरा पैसा 10 गुना होने वाला है. देयर इज नो एसेट क्लास व्हिच कैन बीट दैट. दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग इज. या कई लोग होता है जिनको लगता है कि नहीं रिस्क टॉलरेंस कम है, मैं तो एफडी में ही करूंगा, मैं उसके ऊपर कर नहीं सकता हूँ. सो हमने क्या लिया है कि 2010 में गोल्ड का रिटर्न क्या था, फिर अगर आपने कोई एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, उसका रिटर्न कितना होता, या अपना एफडी का रिटर्न कितना होता, रियल एस्टेट का रिटर्न कितना होता. अब ये आप देखोगे ना, ये बहुत चार्ट बहुत ऐसा लगता है देख के कि अरे इतना रिटर्न कब आया. मतलब हमने पैसा रियल एस्टेट में डाला तो हमको लगता है कि अब 2012 का देखिए तो रियल एस्टेट रिटर्न 17% है, 11 में भी 17% है, और अभी आप जाइए 2019 में तो 2% है. So what we are trying to tell you, you invested the money in 2000 and you withdraw the money in 2020. Are you getting 17% or 2%? It is the average of that. उसके बारे में बात करेंगे कि आगे उसमें कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे देखना चाहिए. So idea is that कि अगर मैंने ये चार्ट देख के पैसा डाला होता कि 2010 में गोल्ड में रिटर्न ज्यादा आया है तो मैं गोल्ड के अंदर ही पैसा डालूंगा, बिकॉज दैट इज द गुड एसेट क्लास. तो क्या हो जाता, 2011 में तो मेरा रिटर्न बन जाता था, लेकिन 2012 में 12% हो जाता था, उसके बाद 2013 में नेगेटिव 18% हो जाता था. तो गोल्ड रिटर्न देख के पैसा डाला, आपका रिस्क टॉलरेंस देख के पैसा नहीं डाला, ये आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो देख के पैसा नहीं डाला. आपने क्या पैसा डाला कि ये रिटर्न यहाँ से बना तो मैंने पैसा यहाँ डाल दिया. तो ऐसा हम लोग, हमारा मिसकंसेप्शन रहते हैं कि वी इन्वेस्ट इन आर we do the investments as per our perception, as per our neighbors advice, as per our relatives advice, as per our reference advice, which we think that they have done the good thing to do. They have made the money, so I will also make the money. तो सबसे पहला तो ये गलत होता है. सेकंड, एसेट एलोकेशन हम लोग नहीं करते हैं. हमको लगता है कि ये एसेट क्लास अच्छा है, इसके अंदर पैसा बनेगा. तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि स्ट्रीट वेंडर, वो स्ट्रीट वेंडर क्या कर रहा था, वो खाली ये मैनेज कर रहा था कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट रहें ताकि मैं अपने कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकूं, मैं अपने प्रोडक्ट पोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकूं, और मैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी में भी या बॉटम लाइन में भी मेंटेन रह सकूं. ऐसा नहीं कि मैं खाली सन ग्लासेस बेचूंगा तो खाली समर के अंदर ठेला लगाऊंगा, उसके बाद मैं मेरा कोई अंदर कुछ काम ही नहीं करूंगा, या मैं खाली विंटर्स में काम करूंगा, या मैं खाली रेनी सीजन में काम करूंगा. ही हैज नॉट डन दैट, ही हैज डाइवर्सिफाइड हिमसेल्फ. So that was a small example which I want to link it over here, that this is what we do when we decide about our investments. तो पहला चीज क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग सीरियसली कभी लेते नहीं. हम लोग को लगता है अरे अभी तो मेरी उम्र 25 साल ही है, या 30 साल ही है, या 35 साल ही है, अभी तो मेरे पास 30 साल बचे हैं. 30 साल बाद उसका क्या, उसका कंपाउंडिंग होगा, कितना खर्चा होना चाहिए, कितना हमको रिक्वायरमेंट होगा. सो दैट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक विच वी कैन टेक सम अदर टाइम. बट हम जिस क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न्स क्या आएगा वो हमको पता होना जरूरी है, और हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है वो पता होना जरूरी है, हमारा एज क्या है, टेनोर कितना. ऑल दीज थिंग्स कम्स व्हेन यू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग. सो इट इज नॉट व्हाट यू ओन दैट विल सेंड यू बस्ट, बट व्हाट यू ओ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आपने आज एक एसेट क्लास लिया थिंकिंग कि ये अच्छा एसेट क्लास है, बट जब आपको उसका रिटर्न्स आना चाहिए उस टाइम पे उसका रिटर्न्स अगर नहीं आया, या उस एसेट क्लास में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स कि आपको लगता है. सो नोशनली हमको लगता है, जैसे आज मेरा फ्लैट है 20 साल से, मैंने फ्लैट लिया था 50 लाख का, आज मेरा फ्लैट का वैल्यू 2 करोड़ है या 3 करोड़ है, तो मेरे को लगता है कि मेरा 2.5 करोड़ का बेनिफिट है. बट वो कैसे अभी नेगेट होगा मैं आपको थोड़ी देर में एक वर्किंग दिखाऊंगा. सो इट इज नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग. That is the most important thing to understand. कि whether the money which is looking into the portfolios is the money which I am making. अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. अभी if you just consider the recent phase, pandemic phase, COVID-19, जो लोग स्टॉक मार्केट को फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मार्च 20 में स्टॉक मार्केट्स हैज टच द लोज, एकदम लो पे आ गया था, राइट? मतलब आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका सब मार्केट वैल्यू नीचे आ गया होगा, चाहे आपने 4 साल पहले किया हो या 5 साल पहले किया हो. तो पीपल स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग.
सो मैंने अभी एक कैलकुलेशन भी किया था विच आई हैव जस्ट नो केप्ट इट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग दैट नो व्हाट दे हैव डन इज दैट दे स्टार्टेड रिडीमिंग द मनी. सब लोगों ने SIP को स्टॉप किया, सब लोगों ने पैसा मार्केट से बाहर निकाला, सब लोगों को लगा कि नहीं अभी तो ये ऐसा पेंडेमिक है जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा, जिसकी कोई वैक्सीन ही नहीं है, जिसकी कोई दवाई ही नहीं है, तो मार्केट कैसे चलेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगा, मार्केट में ग्रोथ नहीं होगा, GDP ग्रोथ नीचे आने वाला है, नेगेटिव हो गया. सो ऑल एस्टिमेट्स वर कमिंग नेगेटिव. तो वी बिकम fearful when the time is very right and we becomes greedy when the markets are going high. तो अभी 6 महीने के अंदर क्या हो गया, पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर सबने माल बेच दिया. सबको लगा कि नहीं अब तो हमें मार्केट में नहीं रहना है और अभी निकल जाओ बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम. सो वी डिडंट डाइवर्सिफाइड. So idea is that we didn't diversify in the right manner. We thought that now it's a time to just pull it off and we get out. And that was a time when we need to probably be in the markets because next 6 months के अंदर अब आप जाओ अगर थोड़ा पीछे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ जो भी स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं कि 23 मार्च को सेंसेक्स 7,500 था, आज सेंसेक्स आपका 13,500 के आसपास आना शुरू हो गया, 13,200 होगा. Nobody expected in the world. No, nobody expected that this markets or global markets, Indian markets will come to the levels. तो अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि अगर मैंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करके और मैंने अगर पैसा मेरे पास था मैं बेच दिया होता तो आज मेरा कितना नुकसान होता. So this is what we do. So it's an investment strategy by which an investor or portfolio manager attempts to balance risk versus reward by adjusting the percentage of amount invested in asset of a portfolio according to the risk tolerance, goals, investment time frame. तो all these things are considered. तो क्या होता है ना कि कोई भी एक एसेट क्लास में पैसा डालेंगे तो हमारे को ग्रीड भी ज्यादा रहेगा, डर भी ज्यादा रहेगा. तो अगर हमारा बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा तो दम हमको डर नहीं लगेगा. देन वी आर क्वाइट क्लियर कि चलो ये एक एसेट क्लास नीचे जा रहा है तो एक तो ऊपर जा रहा है, ये एक तो नीचे जा रहा है तो एक बैलेंस्ड है, तो इट विल बी बैलेंस्ड. तो अब एसेट क्लास क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट क्लास तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं. या तो हम करेंगे जैसे मैंने बताया कैश में, या तो बैंक में रख दो, या अपने FD में रख दो, या कोई डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो, या स्टॉक्स में डाल दो, या रियल एस्टेट में डाल दो, या मेरे को गोल्ड अच्छा लगता है, या मेरे को क्रूड ऑयल अच्छा लगता है. बहुत सारी चीजें हैं. मतलब आज के टाइम में तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप थक जाओगे लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं बचेगा कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो. सो इट इज द एसेट एलोकेशन का गोल क्या रहता है कि आपका रिस्क को रिड्यूस करना है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज नहीं करना है, रिटर्न्स को बैलेंस करना है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, सो दैट आपका एक जगह पे आपका यू आर नॉट होली इन्वेस्टेड इन वन एसेट क्लास, तो उसका रिस्क आपको नहीं आना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स एंड दिस इज व्हाट इट डज. सो इट ऑप्टिमाइजेज your the process of identifying the portfolios of assets that are projected to generate the highest possible expected return within the asset classes. अब देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने खाली एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा रिटर्न्स ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. अगर मैंने 4 एसेट क्लासेस में किया है, बिकॉज चारों एसेट क्लास का करेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, डेफिनेशन अलग होता है, रिस्क अलग होता है, रिवॉर्ड अलग होता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, एक बैलेंस्ड आपका रिटर्न आएगा. तो जनरेटेड हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. अब सपोज करो एक 30 साल का एक कोई भी ह्यूमन बीइंग है. अब 30 साल का ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्टेड होता है कि वो उसका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल ज्यादा रहेगा, उसका टाइम होराइजन ज्यादा रहेगा. तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्विटी में थोड़ा पैसा ज्यादा डाल सकते हैं, गोल्ड में थोड़ा कम डाल सकते हैं, डेट में थोड़ा कम डाल सकते हैं. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी 30 ईयर ह्यूमन बीइंग हैज द सेम रिस्क कैपेसिटी. देयर आर पीपल हु आर fearful at the age of 30 also, and there are people who are very greedy at the age of 60 also, and they want to take the risk at the time of retirement also. I have seen those kind of investors because we have been dealing with those kind of people on a day-to-day basis. So idea तो आप एक adequate allocation process क्या होता है, how to review your circumstances. Like अभी आपके circumstances presently क्या है. If you are a 30-year-old male or female, and if you are unmarried, and if you understand your responsibilities very well, whether you understand that at the age of 60 what kind of money requirement you have, whether you understand at the age of 40 you would be having 1 kid or 2 kids, and then you would be requiring the money for education, you would be requiring money for their nurturing, you would be requiring money for taking your children out. तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको रिव्यू ऑफ सर्कमस्टेंसेस करके कि आपके पास कितना कॉर्पस है, कितना आपको जरूरत है, फिर उसके हिसाब से आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल्स क्या है, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपका रिटर्न्स लेवल्स क्या है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है,
उसके हिसाब से एक कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको एसेट सिलेक्शन करना चाहिए कि भाई आपको 50% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, 30% पैसा डेट में डालना चाहिए, 20% आपको यहाँ डालना चाहिए, मे बी गोल्ड में डालो या रियल एस्टेट में डालो। अब रियल एस्टेट का अलग कहानी है, बहुत लोग, हमको प्यार रहता है रियल एस्टेट से, बहुत लोग रहता है, बट उसका कहानी बहुत अलग है। क्योंकि रियल एस्टेट से क्या होता है ना, रियल एस्टेट इज समथिंग विच इज नॉट लिक्विडिटी, मतलब इट विल नॉट प्रोवाइड यू द इमीडिएट लिक्विडिटी। सेकेंड इज दैट यू हैव अ लॉन्गर टर्म टू वेट ओवर देयर, मतलब अगर आपको बेचना है तो पहले आप देखो। अब मेरे को तो ध्यान है कि 2013 के बाद रियल एस्टेट का मार्केट चला ही नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते और आपने अगर सपोज करो 2008-2009 में अगर कोई रियल एस्टेट लिया होता तो आज आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होता, क्योंकि उसका रिटर्न अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप देखो कि 11-12 में आप जो रियल एस्टेट लिया उसके बाद तो रियल एस्टेट मार्केट नीचे है, और उसको कितना साल हो गया? आज 7 साल हो गया। तो 7 ईयर्स से आपका रियल एस्टेट मार्केट नहीं चला है। तो अब अगर मैं बेचना चाहूँ, अगर सपोज करो मेरे को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और मेरे को कुछ ज़रूरत है और मेरा खाली एसेट क्लास अगर रियल एस्टेट ही है, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब एसेट एलोकेशन का बात करते हैं उसके अंदर 3 चीज़ आता है। पहला, आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो मैक्सिमाइजेशन। सेकंड इज एडिक्वेट रिटर्न्स, और सबसे पहला जो होता है वो होता है लिक्विडिटी। क्या मेरे को जब जरूरत पड़ेगा तो लिक्विडिटी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। अब अगर सपोज कर रहा हूँ मेरे पास खाली रियल एस्टेट है तो 7 साल से मेरे पास तो उतना जो मैंने लिया था उससे नीचे अगर मैंने हो गया है या मेरे से नहीं बिक रहा है तो आप करोगे क्या? पैसा कहाँ से लेके आओगे? So these are the very important things when you talk about asset allocation and when you're talking about dividing your money between the different asset classes. So what is your circumstances? What is the asset selection that you will do? Assessment करना पड़ेगा उसका कि भाई मैंने कुछ asset classes में पैसा डाला है, उसमें पैसा कैसा चल रहा है, बराबर returns आ रहा है नहीं आ रहा है, या have to change. So अभी उसके बारे में बात करते हैं. So asset allocation. So on average 90% of the variability of the returns and 100% of the absolute level of returns is explained. अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, ये लाइन में मत जाइए बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है। क्या होता है इसमें कि आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स आता है ना, वो आपका 90% का जो एसेट डाइवर्सिफिकेशन होता है उस पर डिपेंड करता है, तो आपने कितना आपने वेल डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो बेनिफिट क्या होता है? एक तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, जैसे मैंने बात किया आपसे कि अगर आप एक ही एसेट क्लास में ज़्यादा ओवरवेटेड रहेंगे तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्रॉपरली जो है बैलेंस वे में आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया है, तो रिस्क बढ़ेगा। रिटर्न्स आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैंने मार्च 23 को जब मेरा मार्केट गिरा तो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि अभी दिस इज द रॉन्ग मार्केट, अब इसमें तो वो हाथ डाला था लेकिन अभी बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग बिकॉज वो ओवरवेटेड था, तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। मतलब अगर मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं आएगी कि अगर मेरे को मेरे को अगर रिक्वायरमेंट है 12% या 15% के हिसाब से, तो मेरे को कितना पैसा बनना चाहिए? कैन वी मेक इट an interactive process over here? Can we do it? If I ask you a question, can somebody answer? Yes, sure. The audience? Yeah, so I just want to understand कि अभी why do we do the investments? Asset allocation तो ठीक है, why do we do? Anybody can answer. मतलब why do we do the investments? To secure our future. To secure our future. Anybody else? What is the basic objective? Secure our future, grow money, take care of our family, take care of ourselves. Yeah, Vaishali Vichara has answered. She is saying to beat inflation. Yes, so that's a beat goals. Correct. So Vaishali, you are from some chartered accountancy company or associated? Vaishnavi. Sorry, Vaishnavi Vichara. Okay. So that's a nice answer because that is the real answer. तो अगर इन्फ्लेशन आपका 8.5-9% रहे और आपका कोई भी एसेट क्लास से रिटर्न्स 6-6.5% आए, तो हमको ऐसा लगता है बैक ऑफ द माइंड कि हमारा पैसा बना है, बट बनता नहीं है। वो आपका भाई हमारे पास तो यूएस की जैसा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, अदरवाइज आई कुड हैव टर्म्ड इट, बट ये दिस इज गोज फॉर द चैरिटी ओनली। मतलब योर मनी दैट यू मल्टीप्लाई इज नॉट द मनी दैट यू कुड हैव मल्टीप्लाइड एट द हायर रेट। तो व्हाट कुड बी द रेट? any idea what could be the rate of the asset classes? किसी को पता है कि लास्ट 20 साल के अंदर कितना कैश का रिटर्न आया होगा, कितना एफडी का रिटर्न आया होगा, कितना रियल एस्टेट का रिटर्न होगा?
कुछ आइडिया है किसी को भी, कोई बोल सकता है? एनी आइडिया? Nobody. So I'll tell you. So last 20 years, no, 20 or maybe 25 years, or if you take 30 years, any time period, anything more than 10 years, your equity जब मैं बोलता हूँ ना, तो equity में खाली मैं बात कर रहा हूँ आपको इंडेक्स का. मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने कौन से फंड में पैसा डाला है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ कि आपका इंडेक्स का रिटर्न, मतलब अगर आपने सेंसेक्स में या निफ्टी में पैसा डाल के भूल गए होते ना, तो आपका 10 गुना पैसा हो जाता. तो इट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 12% काइंड ऑफ नो रिटर्न्स. So that beats inflation, number one. Yes. So answer is that why we do the investment? To beat inflation. We do not do the investment to secure ourselves. Yes, for security there are, no, you have to do the term insurance. Then you have to do the other insurance policies which you think that no, it save your life. But you cannot secure yourself no with the investments. There are two different things: investments and insurance. When you talk about security of yourself, you have to consider on insurance. When you talk about growing wealth, because securing yourself is the need which has to be done with everybody. आज मेरे को भी मेरा सिक्योरिटी चाहिए ना, मेरे फैमिली का सिक्योरिटी चाहिए, या मेरे को मेरे पेरेंट्स का सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. अगर 15 साल बाद मेरा बेटा मेरे को बोलता है नहीं मेरे को एक आई वांट टू गो टू यूएस, तो उसके लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंडसेट कि मेरे को करना क्या है, मतलब पैसा क्यों चाहिए. अभी कई लोग को लगता है कि नहीं मैंने LIC किया 15 साल का, 15 साल बाद मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं उसको यहाँ पे मेरे रिटायरमेंट के काम आएगा, ऐसा बहुत लोग को लगता है. और लोग तो दिस इज नॉट द राइट एसेट क्लास, बिकॉज लास्ट 20 साल का LIC का रिटर्न तो 5.5%, या लास्ट नो आप 20 साल का FD का रिटर्न 6.5% होगा, गोल्ड का रिटर्न 8.5% होगा. रियल एस्टेट का रिटर्न 8% होगा. देखो कि आपको पैसा बन रहा है या नहीं. सेलेक्टिंग द एसेट क्लासेस, ये व्हाट आई एम डूइंग, वेदर माय टाइम होराइजन इज 15 years और 2 years, वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट the money for the next 20 years, what I'm doing, whether I'm selecting the right asset class, वैसा जो है, because it is hard earned money. See, we are all into the businesses, we are all striving hard. I'm into service, you guys must be doing some business, but there is a capital involved, right? When the capital is involved, there is obviously two things in mind. एक तो मेरा return on capital कितना आ रहा है, प्लस मैं कितना अपने मेरे बिजनेस से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो रहा है. अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट करूंगा. भाई मेरे एक्सपेंसेस निकल जाएंगे तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना. तो आई हैव टू हैव द डीप गुड प्रॉफिट्स एट माय हैंड. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस. And this is hard earned money. So we cannot fool around with our money कि बॉस वो पैसा मैंने डाल दिया था 5 साल पहले, मेरे दोस्त ने बोला था 10 साल पहले बोला था, लेकिन रिटर्न्स कुछ आया नहीं. तो लेकिन 10 साल का टाइम निकल गया. टाइम will never come back. So the late you start, the more you lose, and the early you start, the more you gain. So this is the benefits of reduced asset allocation. It reduces your risk. It gives you the consistent returns. It gives you a greater focus. अब जैसे आप सपोज करो like in mutual fund there are different plans. Somebody is focusing on children benefit, somebody is focusing on retirement. अब उसमें क्या होता है ना कि जब सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ स्टार्ट किया thinking that this is for my child, then I will not touch that money. I will make it sure. जैसे हम लोग कैसे करते हैं, अभी सपोज if you have a house, if you buy a house, तो पहले आप क्या करते हो. अगर मेरा सैलरी आता है तो सैलरी में पहले मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो EMIs है पहले निकाल देता हूँ. करेक्ट, कि मेरा ये होम लोन का EMI है, ये मेरा पर्सनल लोन का EMI है, ये मेरा ऑटो लोन का EMI है, इसको निकाल दो. बिकॉज दिस इज द मनी आई हैव टू गिव वेदर आई अर्न और आई डोंट अर्न. दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. इफ आई हैव द लायबिलिटीज ऑन माय हेड, आई हैव टू गिव दिस मनी. वो क्लियर है. सो you keep it separated. Similarly, the mindset has to be developed in a manner that this is the money I am doing for my retirement, or this is the money I am separating for my child. I have to do it first and then only I can spend the money. We have to get into this kind of mindset, which normally today's Gen Z kind of generation, हम लोग तो Gen X हो गए, अभी पुराने हो गए, अभी Gen Z आ गया है, new generations, who are into Netflix and more of the mobiles and Facebook and Twitter. So they are too volatile and too kind of mobile. They are very good at all these digital assets and very good at technology. So all these guys have started thinking about that. They obviously think about it now. So this is happening. So this is a change which is there, and this all these
कंपनीज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू LICs, आप कितने सारे एड्स आपने देखे भी होंगे, नो ऑन द टीवी आल्सो इट्स कमिंग लाइक एमपी इज डूइंग म्यूचुअल फंड चाहिए कि इतने सारे कैंपेन्स आ रहे हैं. तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड. अभी आज से 5 साल पहले म्यूचुअल फंड किसी को समझ में नहीं आता था. लोगों को लगता था अरे ये क्या होता है, ये तो मार्केट से लिंक्ड है, मार्केट तो रिस्की है, वहाँ पे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो अंबानी से सबका पैसा खा जाता है, किसी को मिलेगा नहीं कुछ भी, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा. तो पीपल यूज्ड टू थिंक दैट नो इक्विटी मतलब म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क. सो दे नेवर अंडरस्टूड कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है. वो अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बिकॉज नाउ दे आर understanding the nuances of it. So this is what happens when you talk about asset allocation. When you meet a right advisor, he will give you the right advice and he will tell you very frankly that this is what you have to do. Paras ji मेरे को रोक दीजिएगा, because when I keep on speaking, I keep on continue speaking. Whenever you have whenever I have the cut off time, please let me know. Let's try and complete it within that time period. Yeah. So it gives you a clear focus. और फिर क्या होता है ना, मार्केट टाइमिंग नहीं करते हम लोग. मार्केट टाइमिंग कैसा कि अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये स्टॉक नीचे आएगा तो मैं नीचे में डाल दूंगा, ऊपर में निकल जाऊंगा, बहुत करते हैं हम लोग. तो हम लोग को लगता है इफ यू आर लकी इनफ एंड इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन डेटा, यू कैन डू दैट. कि आप वो 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक अपने डेस्क पे बैठ जाओ CNBC के सामने और सारे मतलब आपके जो 10-12 स्टॉक्स है उसको ट्रेड करो. फिर आपको वो आइडिया आएगा कि ये नीचे कितना जाता है, ऊपर कितना जाता है. वो उसको बोलते हैं मार्केट टाइमिंग. बट उसमें क्या है कि यू हैव टू गिव योर टाइम. It will not come on your own. उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा. You have to give your expertise. उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या देखना चाहिए. So that is why people come to the different mutual funds or different companies to do that. But this may not be useful for everybody. क्योंकि क्या होगा ना कि आपने टाइमिंग किया, कभी कभी आप हो सकता है कि 20 में से एक बार सही हो जाओ, बट 19 बार गलत भी होगी, तो वहाँ लॉस भी होगा. So that we have to keep into the mind. So these are the factors when we talk about it, that asset allocation, it gives you the direction in terms of predicting the near-term future direction of the financial markets and eliminates that you are at the wrong market at the wrong time. This gives you that kind of surety. So 4 factors: one is age, one is income, then time horizon, and the risk tolerance. So that is what we have to see to it, because on the basis of these 4 factors, we decide. हम लोग किसी के पास जाएंगे तो हम लोग को ये 4 फैक्टर पूछना चाहिए. अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर आपको नहीं पूछता है ना, तो देन यू मे नॉट बी हैविंग द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर विद यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज का इन्वेस्टमेंट भी है ना, खाली प्रोडक्ट से नहीं होता है. पहले आपका यू हैव टू लिस्ट डाउन, एन्यूमरेट द फैक्टर्स कि भाई आपको चाहिए क्या, क्या करते हो, कितना आपका सैलरी है, कितना आउटफ्लोज है, इनफ्लोज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या लाइबिलिटीज है. इट कवर्स दैट. उसके बाद द प्रोडक्ट आता है. यू कैनॉट इन्वेस्ट कि नहीं मेरे पास 2000 बचे हैं तो मैं 2000 का आज SIP स्टार्ट करता हूँ, कल मेरे पास 5000 का लमसम बचेगा तो 5000 का लमसम स्टार्ट करूंगा. आई विल डू द थिंग्स. नो, दिस इज ऑल द रॉन्ग मैनेजमेंट व्हिच वी डू, बिकॉज वी थिंक दैट इन्वेस्टमेंट इज समथिंग वी नो, और इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर ही लेंगे. नो, बिकॉज वी डोंट गिव काइंड ऑफ वेरी सीरियसटी टुवर्ड्स आवर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आवर इन्वेस्टमेंट नंबर्स. तो हम लोग को लगता है कि जब टाइम आएगा तब देख लेंगे. अभी तो टाइम आया नहीं ना. जब मेरा बच्चा जब हो जाएगा ग्रेजुएट करके, उसको जब जाना होगा US, तो तब देखेंगे. अभी क्यों देखना है? Then we'll see that what we have to do. Either we will borrow the loan, we will go to bank. फिर वो मेरा उम्र जो आज 30 साल का है, फिर वो 50 साल का हो जाएगा. 50 साल में लोन कौन देगा? तो we have to consider a lot of factors कि वो उनको लोन देगा नहीं देगा. और आज का रिलेटिव तो लोन देते नहीं है. अभी नेबर्स तो कोई देगा नहीं कि भैया पैसा लेके जाओ भाई, ऐसा तो होता नहीं है. So we have to consider lot of things. So we have to decide on our asset allocation on the basis of these 4 factors. So these are the conventional wisdom of asset allocation. The earlier we follow the proper asset allocation strategies, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर if you have done the right assessment, अगर आपके goals आपको बहुत clear हैं लाइफ में कि मेरे को 40 साल में इतना पैसा चाहिए, 45 में चाहिए, 50 में चाहिए, 60 में चाहिए, मेरे को अर्ली रिटायरमेंट करना है, मेरे को I want to have 2 international trips in a year, I want to have a good kind of big luxury car, I want to have a kind of flat in Nepean Sea Road, I want to see the Marine Drive every day. So these are your goals. You can obviously illustrate that in a very fine manner, but उसके लिए क्या है कि early you start, you will be able to have the proper asset allocation strategy in place, and it will help you in your short term, mid term and long term goals. Second is the income levels. अब कई लोगों को लगता है कि मेरा इनकम, अब मेरे को चाहिए 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, मेरा इनकम तो खाली 50,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है. Whether I will be able to do it or not, yes you can do it. But उसमें क्या होता है ना, एक balance, you need to have the discipline, number 1. Secondly, right asset class, number 2.
Third is that your patience and your you should not be greedy at the times कि आज मेरा पैसा 10 गुना हो गया तो निकाल लेता हूँ, वो नहीं होना चाहिए. वो then you have to stick to your goals very well. Obviously you have to do some profit booking, but you cannot come out from the market. You can go from equity to debt or maybe to balance, depending upon the time periods. That obviously every financial planner does it at the right time. So income levels. So even though you have the lower income, but then you can obviously build it up, because क्या होता है, wealth creation doesn't happen in a day. It takes years to do. मतलब a portfolio can generate a returns over the period of 20 years at CAGR. जो मैंने आपको 12% रिटर्न बोला था ना अभी, वो 12% एक दिन का नहीं, वो 20 साल का है. हो सकता है कि किसी साल के अंदर 60% भी आया रहेगा, किसी साल में -20% भी आया रहेगा. सो आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग, बट आई एम सेइंग दैट वो 20 साल का रिटर्न है, वो एक साल का रिटर्न नहीं है, एक महीने का रिटर्न नहीं है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, दैट व्हाट इज द इनकम लेवल्स, देन व्हाट इज द रिस्क टॉलरेंस. अब जब सपोज करो मेरा रिस्क टॉलरेंस नहीं है. रिस्क टॉलरेंस कैसा कि अब मेरे को आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइविंग अ मर्सिडीज. अब कोई मेरे को मर्सिडीज दे देगा तो मेरा उतना रिस्क टॉलरेंस भी नहीं है ना. आई विल मोर कंसर्न इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ऑल्सो, कि चलाऊं नहीं चलाऊं, कहीं गलत हो या तो कहीं और चला गया तो. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट माई रिस्क टॉलरेंस लेवल्स, कि वेदर आई कैन बेयर दिस रिस्क आई कैन स्टे इन दिस मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म. उसके हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट लेना चाहिए. टाइम होराइजन ऑब्वियसली एज आई सेड दैट इट ऑलवेज मैटर्स, क्योंकि आपका जो वेल्थ क्रिएट होगा ना वो लॉन्ग टर्म में होगा, वो 5 साल 10 साल में नहीं होता है. मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 5 साल कोई रिटर्न देखा नहीं था. लास्ट 6 महीने में जो रिटर्न देखा वो 5 साल में नहीं देखा था. तो वो सबके संग होगा जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे. जो डर के निकल गए होंगे उनका तो शायद नहीं होगा, बिकॉज दे हैव बुक्ड द लॉसेस. सो डिसाइडिंग व्हाट इज राइट फॉर यू, एज ईच एसेट क्लास हैज इट्स ओन लेवल ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क, you should consider your own investment objectives, risk tolerance, time horizon, and the money that is available to invest. That is very important. Because क्या होता है कि अब हमारे खर्चे तो बढ़ते ही हैं. Every year we have the money to spend, we have the new liabilities, we take the new liabilities on our head also. Sometimes we do conspicuous spending. जाते हैं ना मॉल के अंदर जाएंगे तो 2 के संग में 1 फ्री है, तो then we it's tempt to us to buy. और आजकल तो सब जगह ही है, because nobody has done the good business in the last 6-7 months. So people want to sell and they want to sell at discounts. So it tempts us. तो उसमें क्या होता है, फिर क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ जाता है. Then we buy it somehow. We disturbs our monthly kind of routine also. But we need to stay disciplined कि भाई मेरा अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, या मेरा अगर सैलरी बढ़ रहा है, या मेरा बिजनेस में कहीं से कुछ ग्रोथ हो रहा है, या इनकम बढ़ रहा है, तो पहले मेरा गोल, क्योंकि आज किसी के पास जाके बैठोगे तो आपको आदमी बोल देगा कि अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. हो सकता है कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करने का इतना आपका यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी. बट इफ यू नो कि मेरा आज 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 इन्वेस्टमेंट हर महीने का करूंगा, तो मेरे को 15 साल बाद इतना पैसा मिलने वाला है. देन यू विल डू इट. देन व्हाटएवर मनी कम्स टू यू विल बी वेल प्लान टू डू इट. अदरवाइज ऑल दीज kind of piecemeal investment that we do, कि जब आया तब कर दिया, उससे then actually क्या होता है कि then we lose the trust on the investments also, because एक तो क्या होता है, proper tracking नहीं होता है. Secondly, we don't have the right investments in place, and then we lose the trust कि जब पैसा चाहिए तब बनाएं, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कहीं और करना था, कहीं और कर दिया. So as I said कि वो टाइम निकल जाएगा, time will never come back. You have to very clear about the timings that you have with you, because वो लाइफ स्पेन तो वही है ना. तो हम लोग बोलते हैं ना कि आप पहले you invest and then you have accumulation phase and then you have the distribution phase. So accumulation phase takes a lot of time. Distribution obviously has its own time, but investment is a longer period. Accumulation is a little shorter, and then you have the distribution, which is probably a little shorter than your accumulation also. So these are the different asset allocation strategies what people should follow. अब strategic asset allocation क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मेरा एक सपोज करो कि मेरा इक्विटी, डेट, कैश, रियल एस्टेट, गोल्ड, अब मैंने डिसाइड किया कि मेरा 20% जो है इन पांचों में रहना चाहिए, तो वो इन पांचों में 20% रहेगा, irrespective of where the markets are, irrespective of what is happening. I will be only focused कि मेरा strategic asset allocation 20% हमेशा होना चाहिए. अब इसमें सपोज करिए कि मार्केट बढ़ गया और इक्विटी का आपका एलोकेशन 20% का 30% हो गया, तो देन यू विल ट्रिम दैट 30% एंड मेक इट अवेलेबल टू 20%. सो यू विल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी टू इट कि अगर मेरे को कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है तो मैंने उसको रियलाइज किया और उसको मेरा दूसरे एसेट क्लास जहाँ पे कम हो गया था वहां डाल दिया. सो इट वर्क्स ऑटोमेटिकली in terms of returns and in terms of the risk,
in terms of the investment returns, in terms of the investment time period. तो वो आपने उसमें strategic हो गया, मतलब this you are not going to touch that. टेक्निकल क्या होता है? अब टेक्निकल बहुत लोग, जैसे मैंने आपको बोला ना कि सपोज करो मेरे को लग रहा है 2 साल यहाँ से इक्विटी मार्केट या मार्केट बहुत अच्छा चलने वाला है, आज 45,000 हो गया है, 60,000 हो जाएगा, 65,000 हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा वो 20% को ना मैं 40 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ. So I see to it कि ये 40 कर देता हूँ, because I think that now markets are good, so I myself become the a person that who will manage my asset allocation. So I try and take 40% here. फिर मेरे को लगता है नहीं गोल्ड में कम कर दो, कि गोल्ड का रैली बहुत हो गया, लास्ट 1-1.5 साल में गोल्ड का रिटर्न ऑलरेडी 50% आ गया है, उसको कम करो. रियल एस्टेट अभी चला नहीं है, अब चलने वाला है, तो उसमें थोड़ा बढ़ा दो. तो यू डू दिस टेक्टिकल एलोकेशन ऑन योर ओन. Then constant weighted asset allocation और डायनेमिक, सो इट ऑलमोस्ट इज द सेम, बिकॉज क्या होता है कि एज पर द मार्केट कंडीशन, सपोज करो आपका कोई एसेट डिक्लाइन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली द अदर एसेट क्लास विल टेक द प्लेस ऑफ द फर्स्ट एसेट क्लास, एंड देन यू हैव द अदर एसेट क्लास इन प्लेस. सो इट हैपेंस. सो देयर आर लॉट ऑफ फंड्स इन द मार्केट व्हिच डू इट डायनेमिकली. बहुत लोग करते हैं कि अगर आपका आज इक्विटी में रिटर्न ज्यादा आ गया है, तो इक्विटी का रिटर्न अभी कम करके, मतलब उसका वेटेज कम करके, देन यू automatically it happens. You need not to interfere into it. You do not to intervene also into it. वो ऑटोमेटिकली अपना उनको लगेगा कि नहीं अभी मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स और फंडामेंटल के हिसाब से ये महंगा हो गया है, तो उसको यहाँ से थोड़ा निकाल के वहाँ डाल दो, मे बी डेट में डालो या गोल्ड में डालो. या और दूसरा क्या बैलेंस होता है, मतलब इट रीबैलेंसेस द पोर्टफोलियो इन द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल एसेट मिक्स. कि सपोज करो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो 20% का 30% हो गया, तो 30% वाला आप 10% निकाल के वापस 20% में लेके आएंगे. मतलब वी विल नॉट टेक अ मोर रिस्क इन द पोर्टफोलियो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड. सो ऑल दीज थिंग्स, पहला क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ योर इनकम, एज, टेन्योर, वी डिसाइड द एसेट एलोकेशन, एंड देन वी डिसाइड दैट कौन सा एसेट एलोकेशन आपको करना चाहिए. So these are some of the strategies. I am not saying that every strategy fits right. It can be a mix of 1 or 2, but this is how normally broadly we do the asset allocations in the portfolios. और asset allocation follow करना क्यों जरूरी है? Because that is when you understand your risk probably will go down and your greed will also go down. मतलब आपको ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं इसमें डाल दो पैसा, उसमें से निकाल के इसमें डाल दो. So all these kind of जो temperamental you have this behavioral biases towards कि अभी ये बढ़ गया है तो उसमें डालना चाहिए. and normally क्या होता है ना, हम लोग का बहुत गंदा आदत होता है, we follow returns, we never follow our principles. हम लोग को लगता है ये इसमें रिटर्न आया है तो इसमें तो पैसा डाल दो, because this is the one which will make the returns. और आप जब पैसा डालोगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा. ऐसा होता है, बहुत टाइम होता है ऐसा, because markets has their own fundamentals, they work on their own principles. There are certain factors which probably technically बहुत ज़्यादा हो जाएगा, but there are a lot of factors which we consider when we are doing the investment, because we are into this business, so we know that what is happening in the market, whether you talk about price earnings, whether you talk about growth, or whether you talk about liquidity. So a lot of things are there which are making the money coming into the market. But then for a normal investor, you should not do that. You should be very, very convinced on your asset allocation and do it regularly in the disciplined manner, so that any point of time your returns should not look absurd. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो कभी बहुत ज़्यादा आ गया, कभी नेगेटिव हो गया, बिकॉज अगर आप सिलेक्टिवली करोगे तो यही होगा. अगर आप बैलेंस करके करोगे तो एक एवरेज बना रहेगा आपका. So these are the so point is that we don't have to be smarter, we have to be more disciplined. And this is how when we plot the risk and return curve, तो उसमें जैसे आपका पहले आपको अगर आपका रिस्क कम है तो आप स्टार्ट करिए मनी मार्केट फंड से करिए, फिर आप थोड़ा सा डेट फंड में जाइए, देन यू गो इनटू द लार्ज कैप या बैलेंस, एंड देन यू गो मिड एंड स्मॉल. सो एज पर योर रिस्क रिटर्न, दिस इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज कॉमन, which I think may be known to most of you who have been investing, and that's how you design the portfolios, like conservative, moderately conservative, aggressive. So आपने देखा रहेगा कोई भी इंश्योरेंस प्लान के अंदर जाते हैं तो वो 3 ऑप्शन देता है आपको, एग्रेसिव में आ जाओ, कंजर्वेटिव में आ जाओ, डिफेंसिव में Mangesh, we have lost him, I feel, na? Yeah, I think so. There is a network issue at his end. Paras, if you can take over from here for some time. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? Yes, please. So till he gets back. Okay. So shall we start the presentation? जो जहाँ से था वहीं से स्टार्ट करना है? Paras, you are a better judge. You continue. Hello.
Just give me 1 second. Tushar can phone. Yeah, yeah. ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ. Hello. Yeah, Tushar. Yeah. Yeah, I think I lost it. Yeah. Yeah. एक मिनट. I Tushar, think I lost in between. So. no problem. Tushar, you have 5 minutes to complete. I just completed, right? Yeah. That is what I said. Just let me know that when I stop, because no problem. then that becomes a bigger kind of, you know. I just want to show you one working method which probably can help you in terms of understanding. Just a moment. Let me just see whether. Just a moment. I can you see this presentation is there on your light? No, you have to start screen sharing actually. We are not able to see. Yeah. I'll do that. I just want to end this presentation because there's something else which I want to show. Just a moment. Can I take one question? Yeah, please do that. Yeah, we have a question for Mr. Sunil Rathi. His question is, which asset class gives time-tested highest return for a time horizon of 20 years? Nothing can. हाँ ले लीजिए प्लीज ले लीजिए. हाँ 20 इयर्स का अगर हम लोग अगेन डिस्क्लेमर कि यहाँ पर जो आप पूछ रहे हो ना, तो मैं पास्ट डेटा से आपको बताता हूँ कि लास्ट 20 ईयर में क्या हुआ है. एवरेज रिटर्न जो एफडी का था वो कम्स टू 8%, बिकॉज आपने देखा होगा कि एक टाइम में जब 2008 में या 9 में पीपीएफ में 12% रिटर्न हुआ करता था, जो आज 7.4 है. तो पीपीएफ का रिटर्न ये सब एवरेज आउट करेंगे तो एफडी का रिटर्न कम्स टू 8%, गोल्ड का रिटर्न कम्स टू 8%, 8 और 9%, और इक्विटी मींस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम्स टू 12 to 14% लास्ट 20 ईयर की बात करें. तो ये I have given this chart. आपको ये चार्ट दिख रहा है? Can you see that? Yes. So this will answer the question because I have taken the returns which have come from the last 20 years. Okay. So equity, let's say 12% as what Parag sir has mentioned. So debt is 8%, real estate is 6.2%. Now what is happening is that if I invested 20 years back, if I have invested 1 crore rupees in all these asset classes, ये basically है मैंने. तो उसका आज के तारीख में मार्केट वैल्यू कितना होता था? मतलब 1 करोड़ का इक्विटी का 9.5 करोड़ है. डेट का आपका अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में डाला होता तो उसका 4.66 करोड़ होता था. रियल एस्टेट आपका 3.32 करोड़ है. गोल्ड आपका 5.01 करोड़ है. एफडी आपका 3.52 करोड़ है. तो यहाँ तक तो ठीक है. तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि अरे मैंने पैसा बना लिया. उसके आगे है प्रॉब्लम किधर आता है? अब मेरा प्रॉफिट ठीक है ये है, राइट. अब डेट के अंदर क्या होता है कि एक डेट का टैक्सेशन होता है. तो बोलता है कि आपको 3 साल के पहले विड्रॉ करेंगे तो आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा. और अगर 3 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो आप जो है आपका टैक्सेशन 30% है, वो 30 नहीं होगी. वो जो आपको 4 करोड़ का वैल्यू दिख रहा है ना 4.66 का, वो आफ्टर टैक्स जो होता है वो 3.53 हो जाता है. तो यू लॉस्ट 1.03 करोड़ ओवर हियर इन द टैक्सेशन. सिमिलरली अब क्या होता है कि अब ये आपका रियल एस्टेट है. इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है. अब मेरे को वैल्यू लगता है कि मेरा बढ़ गया है, जो ऑब्वियसली बढ़ा ही है. अब मैंने इसमें अभी ना प्रॉपर्टी टैक्स लिया है, ना मैंने इसमें मेंटेनेंस लिया है जो हम लोग एवरी मंथ उनको भरना पड़ता है. अब उसमें क्या हो गया कि हम लोग जब इंडेक्स करते हैं ना, तो सपोज करो मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था 2000 में, लेकिन 1 करोड़ का आज का वैल्यू 1 करोड़ नहीं है. आप एक चीज समझिए एक बात को, 1 करोड़ का वैल्यू 2000 का, जो अगर मेरा जो मार्केट वैल्यू 3.32 है ना, तो मैंने नीचे वर्किंग भी किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर सपोज करो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो उस टाइम का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स होता था
और जो आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से आपका वैल्यू जो है वो इट इज 3.53. So you actually have to take today's value. You cannot compare. So property आपने 20 साल पहले लिया, but 20 साल में जो उसका प्रॉपर्टी टैक्स आया है वो तो आप कंसिडर नहीं किया, जो उसका इन्फ्लेशन, क्योंकि 1 करोड़ तो आपने 20 साल पहले दिया था ना, तो उसके हिसाब से। और दूसरा अगर आपको देखना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एज somebody said in the start also, कि अगर आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्थ. तो ये जितने भी है ना 6.2, 6.5, it is not beating inflation. So only thing where we can make money is equity. There is no doubt on it. No, there is no second thought to it. कि अगर आपको पैसा कमाना है तो इक्विटी में आना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड का वे है. If you want to take risk, there are a lot of other products also. But the only thing which can make you money is the mutual fund equity. I'm just talking about, this is the index return. This is not any mutual fund return. I'm not taking any mutual fund return over here. This is index return largely. So this is the profit that you're making after taxation. So no real estate, if I see, index value is more and the profit is less. मतलब अगर 1 करोड़ का वैल्यू आज की तारीख में उसका इंडेक्स वैल्यू ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं नोशनल, जिसको लगता है कि 1 करोड़ का 3.5 करोड़ हुआ, बट वो नोशनल है, एक्चुअल नहीं है. एक्चुअल इज दिस. So this is what the story behind your investment. So हम लोग को investments को you have to consider taxation, expenses, time horizon, and then you have to do it. So this is actually you can do this in a separate session also. But according to us, today's topics, let's stick to that. Asset allocation is the key, and you have to consider all the asset classes, and you have to consider कि कहाँ से returns ज़्यादा आया है, तो वहाँ पैसा ज़्यादा डालना चाहिए. So this is where I end, but sticking to the constraint of time, I think Paras has another something to speak about, so I'll just close this, and sir, you can take your presentation now. Mangesh ji, before I start, कोई question है तो पहले ले लेते हैं. No, we will take it after your session, Paras ji. Okay, done. Yeah. तो मैं screen share करता हूँ. Tushar, you have to stop your screen sharing. I'm doing that. हो गया ना sir? Yeah. Yeah. मैं screen share करता हूँ. ये विजिबल है? Hello. Yeah, just you're not able to see the act. Yeah, now we can see that. अच्छा, तो बताया कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, तो वही चीज मैं सिखाऊं. एसेट एलोकेशन जैसे उन्होंने भी बताया कि हम लोग करते ही आ रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया में मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 18 ईयर का, मैंने देखा है कोई भी एक एसेट क्लास जैसे गोल्ड है, या ऐसा बोलते हैं घर में भी आपने देखा रहेगा कि गोल्ड अगर ले लिया तो फिर उसको बेचना नहीं. फिर रियल एस्टेट है वो तो कभी हम लोग बेचते ही नहीं है. हमारे पुरखों ने बोल के गए कि नहीं देखो नहीं बिकता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है. तो जैसे हमारा गोल्स है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे गोल्स बनते हैं, और गोल्स के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आज से 15 साल के बाद मुझे मेरी बेटी 18 ईयर की हो जाएगी, आज 3 साल की है, तो आई नीड अ अमाउंट. तो कहाँ से आता है कि आज अगर वो कोई भी वी कैन प्लान बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आज से 15 साल के बाद क्या होगा, बट आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो कम से कम 20 to 25 लाख रुपीस लगेंगे. 15 साल के बाद कितना लगेगा? 50 लाख. सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब एक गोल बन गया कि आई नीड 50 लाख रुपीस आफ्टर 15 ईयर. अभी ये जाना कहाँ है वो फिक्स हो गया, लेकिन वहां से किससे रास्ते हैं, जैसे तुषार जी ने बताया, कोई एफडी करके जा सकता है, कोई गोल्ड लेके कर सकता है, ये गोल कंप्लीट, कोई एलआईसी का पॉलिसी लेके कर सकता है. बट एवरेज रिटर्न जो हमने स्ट्रेटेजी की बात की थी ना, वो कैसा था कि सभी में 33% डाल दो और देख लो. क्यों? क्योंकि इक्विटी ने 15%, 12 से 15% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 10%, 9-10% दिया है, और एफडी का एवरेज रिटर्न 8 है. तो हम तीनों में अगर स्टैटिक बराबर डाल देंगे तो हमारा एवरेज रिटर्न कम्स टू 9%. तो इस हिसाब से करते हैं. बट हम लोग ने जो किया है, जो हम रेकमेंड करते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन रेकमेंड करते हैं, और ये पास्ट परफॉर्मेंस है. अगेन डिस्क्लेमर, कोई
इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टू गिव यू इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ये बताया है, ये एक्चुअल रिटर्न है, पास्ट परफॉर्मेंस है। 2006 में हमने ये एसेट एलोकेशन स्टार्ट किया था, 14 ईयर कंप्लीट हो गए। तो 14 ईयर में हमने क्या किया है ना, वो देख लीजिए आप, अगर आपको विजिबल है तो आप देखते हैं। तो हमारे पास 3 एसेट एलोकेशन के पोर्टफोलियो है। मैं ये से सोचता हूँ कि आदमी के लाइफ में देखिए 3 चीजें होती है, टू बी सिक्योर, टू बी कंफर्टेबल एंड टू बी रिच। तो हमने जितने भी लोग हैं, माय जॉब इज टू मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हर एज के, हर कास्ट के। तो हमने उसको 3 चीज में डिवाइड किया है। टू बी सिक्योर, ये पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए है जो रिटायर अभी हो गए हैं या होने वाले हैं, रिटायरमेंट के करीब है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सोचते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूँ, बैंक में इंटरेस्ट 5.5% है, मेरे को उससे 1-2% भी अच्छा रिटर्न मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक कॉर्पस बनाया है, उसमें अभी ज्यादा माइनस नहीं चाहिए। तो ये पोर्टफोलियो में इक्विटी का पार्ट बहुत ही कम रहेगा, ये पूरा एफडी वाला पार्ट रहेगा। टू बी कंफर्टेबल का मतलब ये होता है, और ये किस टू बी सिक्योर पोर्टफोलियो उसके लिए है जो इमीडिएट रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, या 1-2 साल उसका गोल को बाकी है, और जिसका एज 50 के ऊपर हो गया है या 45 के ऊपर हो गया है, इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। दूसरा पोर्टफोलियो है जिसका गोल में एक 8-10 साल का पीरियड बाकी है, टू बी कंफर्टेबल। ये बैलेंस पोर्टफोलियो है, इसमें हम लोग 50% इक्विटी रखते हैं, 50% डेट में रखते हैं। और ये इसके लिए है कि जिसका गोल जो है वो 2-3 साल से लेके 8-10 साल के बीच में है। और तीसरा जो है टू बी रिच, जिसका गोल 15 साल से ऊपर है। अभी एग्जांपल लेते हैं कि 15 साल से ऊपर नॉर्मली गोल कौन सा होता है, हमारा खुद का रिटायरमेंट प्लान, बच्चों का एजुकेशन, शायद ये आपका 8-10 साल वाले पीरियड में आ जाएगा। और किसी को 1-2 साल के लिए प्लानिंग करना है कि भाई मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास ये कभी भी लग सकता है, मेरे घर में शादी है या सिस्टर का शादी है, बट ये पैसा मेरे पास है। तो वो 1-2 साल का जो होता है उसके लिए हम लोग ये करते थे। ये उसका पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न है। अगेन पास्ट परफॉर्मेंस विल नॉट बी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। और एक्चुअली इसमें हम लोग करते क्या है ये आपको बता रहा हूँ। अगर इफ यू कैन सी दिस स्लाइड 60 मंथ, इसमें क्या है, ये डायनामिक एसेट एलोकेशन अग्रेसिव पोर्टफोलियो का रिटर्न है। निफ्टी 500, निफ्टी 500 का मतलब ये होता है इंडिया की टोटल 500 कंपनियां, इंडिया में टोटल 7,200 कंपनी लिस्टेड है, ये 500 कंपनी की हम बात कर रहे हैं। उनका रिटर्न लास्ट 60 मंथ में 5 साल में 8.5% आया है, और हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न 10.49 आया है। यहाँ पर मॉडरेट में आप देखोगे तो 60 और 40 का हम लोग ने कॉम्बिनेशन रखा है, उसमें 8.48 और 8.4 ये करीब करीब सेम है। बट जैसे आप सिंस इंसेप्शन देखोगे, सिंस इंसेप्शन मतलब 14 साल है ये, 2006 से स्टार्ट हुआ, तो 11% रिटर्न आया है, और ये है 10.81%। और जैसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में है तो आप देख सकते हैं 16 साल में 9.34% रिटर्न आया है आफ्टर एडजस्टिंग आवर फीस। इसके बाद इसमें टैक्स लगेगा, वो अलग पार्ट है, बट ये नेट रिटर्न आपके हाथ में आएगा। तो ये एक स्लाइड है, और एक स्लाइड में शेयर करना चाहता हूँ। बाकी हमारे पास काफी पोर्टफोलियोज हैं। अभी इसमें जो स्कीम है, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन बट सिर्फ बता रहा हूँ। तो स्कीम सिलेक्शन में कैसा होता है कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो ऐसा अगर टोटल आप देख लो ना कि टोटल 800 स्कीम्स है, तो 800 स्कीम में टॉप 10% और बॉटम 10% में वेरिएशन बहुत है। टॉप 10% का एग्जांपल ले लेते हैं कि शायद 15% रिटर्न है 10 साल के होराइजन में, और बॉटम का शायद एट पार या 2% है। तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन इतना वेरिएशन क्यों आया? इसका मतलब ये है कि स्कीम सिलेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये स्कीम सिलेक्शन हम लोग ने जो किया है उसमें हम लोग एनुअल रिव्यू करते हैं कि कौन सा स्कीम लेना है, डेट में कौन सा स्कीम लेना है, टैक्सेशन भी कम आए, उस हिसाब से पूरा ये है। तो आज की डेट में ये है हमारे 5 स्कीम है। एक्सिस फोकस 25 पॉइंट, कैनरा बैंक को इक्विटी डिवर्सिफाइड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एंड एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप। डेट फंड में
कैन रेबेको इक्विटी हाइब्रिड, और ये एग्रेसिव जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस फंड है, और ये डेट फंड है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज, एलएनटी आर्बिट्रेज, एलएनटी शॉर्ट टर्म, इन्वेस्को एंड ये। सो ये स्लाइड यहाँ पर खत्म है। मैं और एक स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ, बस लास्ट 10 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट मैक्सिमम हम लोग उसके बाद ये लेंगे। मंगी जी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं। Paraji, if you're okay, then we can have questions because we have last 15 minutes. Yes, आप क्वेश्चन आंसर ले। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। You close all the windows and then again open that file. हाँ ठीक है, जाने दीजिए, वो हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं। No problem. Thanks Paraji and Tushar for the wonderful presentation. Friends, will start with the Q&A session. Paraji, I have a question. बहुत बार ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग माई पर्सनल एग्जाम्पल, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, लेकिन हैपेजार्ड इन्वेस्टमेंट है, वी डोंट हैव अ सेट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट एलोकेशन गोल्ड में इतना होना चाहिए. सो इज देयर एनी टूल अवेलेबल जस्ट टू असर्टेन द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैव करंटली, like in HR we have a CTC tool or a KRI KPIs management tool. So asset allocation में ऐसा कोई tool available है क्या? मंगेश जी, एसेट एलोकेशन में ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे तुषार जी ने भी बताया, एज क्या है, आपका गोल क्या है, से आपका एज किस हिसाब से, आगे 55 का जो बंदा आएगा उसके लिए टोटल एसेट एलोकेशन अलग होगा। जिसके लाइफ में 35 का भी है, मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल आपने दिया है तो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट है, इसकी सिस्टर का डिवोर्स हो गया, तो उसने बोला कि अभी हमारे पास ही रहती है और उनको रीमैरिज नहीं करना है, तो उसकी डॉटर का भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में उसका नाम डाल दो। और मेरी सिस्टर आफ्टर 10 ईयर, वो इतना पैसा अभी तो फिलहाल कमा रही है, लेकिन नहीं कमाए, उसको मेरे को एक लमसम पैसा देना है। अभी ये पर्सनल हो जाता है, एक कोई फिक्स्ड टूल हम लोग नहीं बना सकते। ये सभी का एक रिस्क एपेटाइट भी होता है। मैं आज यंग लोगों को भी पूछता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को रिस्क नहीं लेना। और कुछ जैसे तुषार जी ने बताया, 55-60 रिटायर लोग ट्रेडिंग करते हैं, अपने लाइफ का इनकम करके ट्रेडिंग करते हैं, दिन का 20-50,000 प्लस माइनस ऐसा करते हैं। तो मैंने बहुत ही वैरायटी के लोग देखे हैं। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट डिपेंड्स पर्सनल टू पर्सन, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसका कहाँ गोल है, किस तरह से चाहता है, उस हिसाब से उसका एलोकेशन करता है। Yes. So means it depends on the age factor and lot of other factor, risk taking ability. लेकिन एक लॉ ऑफ एवरेज का कंसेप्ट होता है हर एक फील्ड में. If you take a law of average, यस, लॉ ऑफ एवरेज ऐसा बोलता है कि जो आपका एज है -100, से एग्जांपल आपका एज है 35, -100 कम्स टू 65, तो जितना माइनस एज आया ना आपका 65%, उतना इक्विटी में होना चाहिए। बाकी का जो 35 है वो डेट में रखो, उसमें आप अलोकेट कर सकते हो कि ये बाकी का जो 35 है उसमें से 20-25% मैं एफडी रखूंगा, इमरजेंसी फंड 5% रखूंगा और 20% गोल्ड में रखूंगा। Okay, so your age -100, whatever the value comes, that should be in the equity. Okay, law of averages you can say that. Industry thumb rule we can say that. Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन पारस जी, व्हाट इज द बेस्ट एसेट अलोकेशन? मतलब ये अगेन इट्स रिलेटेड टू थंब इम्प्रेशन, थंब रूल जैसे ही है। बेस्ट एसेट अलोकेशन का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो एसेट अलोकेशन में हमने 3-4 स्कीम देखी, स्टैटिक, बैलेंस और ये। तो हम लोग एक ही एसेट अलोकेशन का आपको मैं बताता हूँ कि अगर किसी ने डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे को आज से 15 साल के बाद तक ये मेरा गोल है, तो मेरे को बार बार उसको देखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मेरे पास इतना ये भी नहीं है मैं उसको देख सकूं, तो वो 33 कर सकता है। जैसे हमने बताया, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, एफडी, ये सारी चीज होती है। बट रियल एस्टेट में आप मंथली 10,000 रुपया नहीं डाल सकते, ठीक है? तो बेसिकली 3 एसेट क्लास बच जाते हैं, एक गोल्ड, एक एफडी और एक इक्विटी। तो अभी जैसे आपने बताया कि भाई गोल्ड में 33% इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास 1 लाख रुपया है, गोल्ड में 33 कर दिया, बाकी एफडी में 33 कर दिया, इक्विटी में 33 कर दिया और इसको चलने दो। तो एक अलोकेशन ऐसा होता है। दूसरा होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब देयर आर पैरामीटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेरा ये स्लाइड शेयर किया था, उसमें हमने डायनामिक किया। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में पैरामीटर्स होते हैं, निफ्टी का पी, मार्केट का मोमेंटम क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या है, इंडिया का जीडीपी क्या है, मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है। उस हिसाब से हम लोग एक रेशियो डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा इसमें होना चाहिए, इतना इसमें होना चाहिए। तो दो मैं बताऊंगा, या तो आप 33 जितना भी है 33 करके भूल जाओ, आपका गोल होगा कभी आप निकालो, आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाएगा, या फिर डायनामिक करो। थैंक यू। तुषार? Yes, sir. Yeah. तुषार, I have a question for you. Like most of the cases में पहले कैसे होते थे, अगर किसी को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो देयर वाज नो ऑप्शन, लाइक किसी को ट्रेडर जो ब्रोकर है उसी को मतलब आपके साथ अकाउंट खोल के। नाउडेज एवरी बैंक हैज देयर ओन वेबसाइट फॉर ऑनलाइन पोर्टल ट्रेडर। सो इज देयर इन बेंचमार्क कि इतना पोर्टफोलियो होने के बाद ही आपको टू हैव अ प्रोफेशनल लाइक एडवाइजर्स लाइक यू, या फिर इंडिविजुअल कैन मैनेज द पोर्टफोलियो ऑन हिज ओन? See, anybody who can give you a better return is the right advisor for you. Irrespective of the portfolio size. Irrespective of the portfolio, a person has to understand very importantly कि आपका goals क्या है। देखिए क्या होता है ना, understanding the philosophy of a person in terms of life goals, in terms of expectations, वो अगर आप मैनेज कर लेंगे तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन कर सकता है। मतलब there's a difference between an advisor and a seller. Okay. So you have to understand that first कि वो मैं एडवाइजर से बात कर रहा हूँ या मैं सेलर से बात कर रहा हूँ। अगर मेरे को पहली मीटिंग में किसी ने फंड बेच के चला गया तो वो सेलर ही है, एडवाइजर नहीं। तो राकेश झुनझुनवाला जी उनका पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हैं, although he is a mentor to lot of investor, but to he seeks guidance from other expert. See, राकेश झुनझुनवाला has become over the years, no? Okay. वो ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम से बन गए। Over the years, obviously, पहले वो जहाँ पे गाइडेंस लेते थे और अब वो गाइडेंस देते हैं। So understanding of the companies have become too well for him. So that's a great example. And a lot of the questions about Rakesh Jhunjhunwala comes in every presentation, whether it is linked or not. Rahul, you have any question? Rahul, Deepak? No, I think you have covered it. तो और अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक लास्ट जो एसेट एलोकेशन में तुषार जी ने जैसे बताया ना, कि वॉरेन बफेट जी भी यही बोलते हैं किसी एग्जांपल के 15 साल के बाद आपको जाना कहाँ है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल रिसेंटली दिया था कि 15 साल के बाद मेरी बेटी को 50 लाख रुपया चाहिए, ये गोल फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी स्लाइड में तुषार जी ने बताया था कि 90% उसमें 3 फैक्टर है कि मेरे को यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन उसके लिए 3 फैक्टर है। मैं क्या लूंगा, मतलब एफडी करके जाऊं या फिर गोल्ड लेके जाऊं या फिर मैं एलआईसी का पॉलिसी लेके जाऊं या म्यूचुअल फंड लेके जाऊं, ठीक है। वो 2 से 3 तक का वो पूरे आपका जो डिसीजन है वहां तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी उस पर अफेक्ट करता है। कब लूं, अभी ये बड़ा है या ये कम हो गया है या पीक है, तब लूं, वो भी 7-8% होता है। 90% आपका वहां तक पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो एसेट एलोकेशन। ऐसा वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि 90% आप वहां तक पहुंचोगे कि नहीं, वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको बार बार एसेट एलोकेशन करते जाते हो। Tushar and Paraji, we have a very interesting question from one of the participants.
Mr. Sunil Rathi, he's saying that when equity is giving the best long-term returns, then why to invest in any other asset class as a part of diversification? Why not to invest only in the equity alone? सुनील जी, आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ. ये बुक भी है एक, आप अगर पढ़ सकते हो तो इसका आंसर है उसमें. ह्यूमन बिहेवियर ही है, फाइनेंशियल बिहेवियर. हर एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, उसका एक बिहेवियर होता है. धंधा करने का बिहेवियर, फाइनेंस में डिसीजन लेने का बिहेवियर. तो बुक का नाम है ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी. डैन आर्ली का बुक है. ये फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में है. बहुत सारे एग्जांपल दिए. आपका क्वेश्चन का आंसर ये है, मैं आपको सुनील जी 2 ऑप्शन देता हूँ कि मैं आपको 1000 रुपया देना है. से एग्जांपल, मुझे आपको 1000 रुपया देना है, बट 2 ऑप्शन है. मैं आपको बोलता हूँ अभी ले लो, ऑप्शन 1, या फिर कल ले लो, मैं आपको 1 महीने के बाद ले लो, मैं आपको 1100 रुपया दूंगा. तो आप कौन सा चूज करोगे? सुनील जी, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते. राइट क्वेश्चन आंसर. सुनील जी, अगर ऑडिबल नहीं है तो इसका आंसर चलो मैं ही दे देता हूँ, बिकॉज टाइम नहीं है. नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को जब किसी को पैसा देना है ना, तो मतलब समझो मुझे पैसा किसी से लेना है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बस दुनिया खत्म हो गई, अभी तो मेरे को अभी का अभी दे दे. ऐसा नहीं सोचेगा कि आज दे दूं और 1 महीने के बाद वो 1100 मतलब 10%, 1 महीने का 10% कौन देगा? लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अगर मेरे को किसी से पैसा लेना है तो दुनिया कल खत्म हो जाएगी और मेरे को अभी का अभी दे दे. और अगर यही चीज, अगर मेरे को किसी को पैसा देना है और मैं किसी को कोई मेरे को पूछता है कि आज दे दे तो तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ मैं 950, और अगर तू 1 महीने के बाद देगा तो तेरे को 1100 देना पड़ेगा. तो मेरे को अगर किसी को देना है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है पूरी जिंदगी पड़ी है, तब भी दे दे. तो सुनील जी का क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर उसमें ही 15, 20, 25 साल अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है तो इक्विटी में ही रहना पड़ेगा. बट हम क्या है ना, आज ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से आप निकलने के बाद और अपना इन्वेस्टमेंट करने तक कितने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फाइनेंशियल प्लानर है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो है, सबसे बड़ा टीवी है जो फ्री में आपको एडवाइस देते हैं. ये सब लोगों का हम लोग भाषण सुनते हैं एवरीडे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो जो आदमी को 15-20 साल तक रुकना है और ये सब न्यूज उसको अफेक्ट नहीं करता है, उसको यही करना पड़ता है. बट मेरा एग्जांपल है, 98% लोग ये सब नहीं करते हैं. उन लोग ये सब चीज में फंस जाते हैं, न्यूज देखते हैं. आजकल तो पान वाला भी ये बन गया है. आप सैलून में जाओ, वो भी बोलता है सर ये फंड अच्छा है. मतलब जब सैलून वाला अगर फंड का स्कीम सिलेक्शन आपको देने लगे तो खत्म हो गया बात. तो मतलब अभी इसमें क्या बचा है? तो आज की डेट में जो सुनील जी का ये सवाल है ना, उसको ही रिलेटेड एक सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे एडवाइस लेना ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया. वी आर इन अ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स, बट क्या लेना, कितना लेना, क्या जरूरी है मेरे लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Paraji, can you just repeat the book you had mentioned in your answer? बुक का नाम है ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी. Okay. Frank, support book है. Honest truth about dishonesty. डैन आर्ली का बुक है. Thank you, friends. Thank you, friends, for your question. Due to paucity of line, will not be able to take more question, but we'll end this Q&A session with one question to both Paraji and Tushar. I'll request you to give three elements, 3 important elements और एक checklist है. ये 1, 2, 3 चीज हमें asset allocation करते समय ध्यान में रखना है. तुषार जी, आप ले लीजिए. जी, पहला तो जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि आपका इनकम लेवल्स, एज लेवल्स एक है, आपका गोल्स दूसरा है. थर्ड इज यार आपका हाउ व्हाट इज द टाइम होराइजन. सो आई थिंक दीज ऑल 3 थिंग्स मेक प्ले अ लॉट ऑफ रोल. जैसे अभी पारस जी ने आंसर किया कि सपोज करिए कि अगर मेरे को इक्विटी में ही डालना है, तो वेरी राइटफुली आंसर्ड कि अगर मेरा पैसा बन गया है तो क्या मैं पैसा बनते हुए देख के विड्रॉ नहीं करूंगा. इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एंड कंट्रोल ऑन द बिहेवियर, देन ऑब्वियसली इक्विटी इज द राइट आंसर एंड राइट वे टू गो इट.
I think वो वैशाली जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि should we invest in those companies for long term in which mutual fund invested their money, as first goal of mutual fund managers are to earn profit. So I think that the mutual fund managers earning money because they have very closed relationship with the financials of the management and the companies that they are researching upon. तो आप अगर वो देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे कि अगर उसने HDFC बैंक लिया है तो मैं भी ले लूं, बट वो उसका वेटेज ऊपर नीचे करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. हातात ग्लोव्स घाला ना, वो आप हातात ग्लोव्स घालून आपके लिए करा. थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. So for you it will be little difficult to do it. So I think you should not follow that what they are buying. You should actually get invested into the fund what they know what they are managing. So go about the fund which is rightfully matching your investment horizon and objective, and don't go on to the stocks, because stocks में क्या हो जाएगा फिर आपको then you have to have that kind of expertise in terms of understanding financial. So there are two different things. So a lot of people do this mistake कि उसने वो लिया तो मैं भी ले लेता हूँ. तो ऐसा होता नहीं है actually. मंगेश जी, मेरा आंसर ये है. थैंक यू तुषार जी. या मंगेश जी, मेरा आंसर ये है कि अभी अगेन डिस्क्लेमर, नॉट अ रिकमेंडेशन. रिलायंस का एक फंड था जो अभी निप्पॉन इंडिया हो गया है, ग्रोथ फंड, ठीक है. इसका 96 में स्टार्ट हुआ, आज इसका एनएवी 1000 हो गया. मतलब जिसने पैसा लमसम एक बार डाला था उसका 100 गुना पैसा हो गया. 21 साल में 100 गुना पैसा. तो फंड मैनेजर को पूछा गया कि 21 साल में 100 गुना पैसा मिला कितने को, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही कम लोगों को. मतलब कितना, अगर 30 साल में आज का पोलियो बना है तो कितना, तो मतलब लेस देन 1%. तो मेरा लेस देन 1% भी 300 400 500 लोग हैं, तो आप उसको बुलाओ, उसका इंटरव्यू लो, वैसे ऐड करो कि भाई 25 साल में इतना पैसा बनता है. तो बोलते हैं ये सारे लोग ऐसे हैं अनट्रेसेबल है. तभी तो पैन कार्ड भी नहीं था और ये भी नहीं था, तो अनट्रेसेबल है. या तो उनको पता नहीं है या तो उनका भूल गए हैं कि क्या है, ऐसा है. तो अभी जो क्वेश्चन है ना कि क्या ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट एसेट एलोकेशन के लिए, भूलना चाहिए. जितना कम मार्केट सुनोगे ना उतना आप ज्यादा डाइवर्ट हो जाओगे. कम नॉलेज लो. अपने फाइनेंशियल प्लानर अगर अभी तक नहीं है तो अपॉइंट करो और उसके साथ बात करो. मेरा गोल क्या है, मेरा एसेट एलोकेशन क्या है, ये 30% हमने इक्विटी में क्यों रखा है, उसमें बात करो. जितना ज्यादा आप सुनोगे ना किसी का उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे. नंबर 1, कम सुनो, फिल्टर करके सुनो, अपने गोल पे फोकस करके उसके साथ अपने फाइनेंशियल प्लान के साथ बात करो. नंबर 2, स्टार्ट अर्ली. नंबर 3, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. जैसे एक हमको जिम के इंस्ट्रक्टर थे, वो एग्जांपल देते थे कि आज की डेट में क्या है ना कि देखो हर एक कंपनी का एक है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग का हर कुछ साल में उसका मॉडल नया आ जाता है, या फिर अर्टिगा है तो उसमें नया कुछ करके ये आ जाता है. तो हम सभी को ह्यूमन टेंडेंसी ये ना ऐसा पूछते हैं कुछ नया है क्या. तो इन्वेस्टमेंट में कुछ नया नहीं होता है, एक ही चीज होता है. इट्स अ बोरिंग थिंग, लेकिन एक ही चीज कंटिन्यू करो. जैसे जिम में जाते थे, एग्जांपल देते थे, सर और क्या करो, कुछ मत कर, बाइसेप बनाना है तो यही कर कंटिन्यू. सर लेकिन बोरिंग है. हाँ ठीक है, बोरिंग है. बोरिंग चीज ही, बोरिंग प्रोसेस ही आपका पैसा लगेगा. रोज नया नया ढूंढने मत जाओ. Thank you for the detailed answer, Paras and Tushar. I'll request our chairman Rahul Amrute to take over the next part of the meeting. Yeah. Thanks, Tushar and Paras, for your valuable insights into various aspects of asset allocation. Planning your investments in the right diversified manner, I think, is the most, and then with a fine balance between equity and debt, is the key to your desired goals met for sure. I would like to acknowledge Paras today, especially on this 10 platform, for being my financial planner for mutual fund investments, and he has been consistent in giving me returns of decent returns of 12% per annum, even in the most challenging times. COVID times been an exception because that has disrupted number of businesses in this time. So I would like to request our secretary, Manoj Teliani, to go ahead with the vote of thanks, and then I will take over for the concluding remarks. Yeah, thank you, Rahul. Thank you. Dear friends, with the appreciating ideas from Mr. Tushar Nanda and Paras Shah, I, on behalf of 10, mention sincere sense of gratitude to them. I would like to place my hearty thanks to the tenors and also visitors who were present for today's webinar session. Once again, I would like to state that we are glad to invite such industry experts today
for our 10 webinar on asset location. It was an enlightening session for all of us who were present for today's meeting. For further advice, visitors can connect with Paras Shah and Tushar Nanda. Thank you. Thank you so much. Yeah, Rahul. Thanks. Mangesh, can you please keep our the membership slide for on the background? Is it possible, or should I make the concluding remark? No, you can read it, Rahul. Okay. Yeah, friends. So what you saw today is what 10 members share every week: positive energy, knowledge about what's happening in the industry, support to an operational problem that is beyond your domain expertise, opportunity to learn from and mentor fellow entrepreneurs, and added benefit is a chance to attract a lot of more business. So who should join 10 and why? Budding or established entrepreneurs are welcome to join 10. 10 is committed to support, promote, and develop entrepreneurs, and our activities are focused on building the entrepreneur community. Please take a call on becoming a part of 10. Annual membership is of 15,000 and 2,000 is one-time registration. So thank you all once again, all participants and our esteemed speakers for sharing your valuable inputs today. Thank you. I end the session. Thank you. Thank you. Thank you, Paras and Tushar. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.